Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. In today's topic, we are going to continue with the previous video that was industrial sector during economic planning period 1950 to 1990. And we have already discussed, this is for class 12 topic. And we are discussing over Indian economy second chapter, in which we have already done agriculture sector that was introduced in the first 5-year plan, and the industrial sector was introduced in second 5-year plan to be focused by the government. And P.C. Mahalanobis, who was a great economist as well as the architect of Indian planning, he has introduced the concept of related to industrial growth at a faster rate in the Indian economy. And with this, the second industrial policy resolution was introduced in 1956. First was 1948, in which we have discussed the three schedule A, B and C, in which industries were classified according to the public, joint venture between public and private, and wholly controlled by private sector. So these all parameters we have discussed in my previous video. Along with that, गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ लाइसेंसिंग पॉलिसी, क्योंकि जब हम अपना शेड्यूल सी पढ़ रहे थे, in which private sector were allowed to open their industries without any restriction, there was one restriction introduced by the government, that was license raj. Means government ने private industries को अकेले पूरी इंडस्ट्री चलाने के लिए, कुछ सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करने के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी कर दिया था. फॉर दिस रीजन लाइसेंस राज पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस. तो वो लाइसेंस क्या है, किस मोटिव से दिया गया, गवर्नमेंट ने उसमें क्या क्या काम किया, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. So those who are new on my channel, please like, share and subscribe it, and also press on bell icon so that you can get time to time notification. So here we'll start. Industrial licensing. It was introduced in IPR policy 1956 schedule C for private industries to start up, to expand their business and to produce variety of products. So what are the theme behind it? Industrial licensing. It was a written permission by the government. First of all, what we need to understand, what is industrial licensing? It is a written permission, means a paper, a document where government is signing, approving private industries to come up, to set up their firms, to work for overall country's production and to work for goods and services production to provide in the market. For this, industrial production is important and industrial license is important to obtain by the government for private industry. So it is a written permission. To industrial and manufacturing unit, किसको दी जा रही है ये written permission? किसको? एक इंडस्ट्री को और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को. मींस जो रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बना रहा है, जो मशीनरी बना रहा है, जो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, उनको ये लाइसेंस मिलता है. सर्विसेज को हटा दें तो स्पेशली इट इज फॉर गुड्स, क्योंकि इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ गुड्स ही प्रोड्यूस होती हैं. राइट. तो कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं? बेसिकली हम सेकेंडरी सेक्टर. किसकी बात कर रहे हैं हम? सेकेंडरी सेक्टर. तो सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है. परमिशन, रिटन परमिशन बाय द गवर्नमेंट. अंडर इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, कौन से इंडस्ट्रियल एक्ट में? 1951 के इंडस्ट्रियल एक्ट के अकॉर्डिंग, जहां पे इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने की परमिशन है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये लाइसेंस लेना जरूरी है. अब ये जानना है कि लाइसेंस दिया किस किस रीजन से जाता है इस सेक्टर में. सो लाइसेंस इज गिवन फॉर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता था. एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, यानी जो इंडस्ट्री पहले से काम कर रही है, अगर उसकी कोई और ब्रांच डालनी है या नया सेटअप डालना है या उसी नाम के साथ उसको और आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है. यानी अगर आपकी इंडस्ट्री राजस्थान में है और आप चाहते हैं एमपी में भी जाए, यूपी में भी जाए, तमिलनाडु में भी जाए, तो उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है. मींस सेम इंडस्ट्री विद द सेम नेम, इफ यू वांट टू एक्सपेंड, यू नीड टू टेक लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट. थर्ड, फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट. If you are producing a product continuously from a long time, if you need some changes according to the modern demand or according to the present demand, that time you can diversify your product or you can modify your product. तो अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है. लाइक अगर हम बात करें, जैसे पैराशूट पहले एक छोटे से कंटेनर में आता था, अब धीरे धीरे वो ऑयल के फ्रेम, बॉटल्स सब बदलते गए. तो इन सबको मॉडिफाई करने के लिए या उनसे रिलेटेड और प्रोडक्ट निकालने के लिए, पीएनजी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें रेंज की,
तो वो प्रोडक्ट पहले कुछ सर्टिफाइड या कुछ सेंटर्ड ही प्रोडक्ट पे होते थे, लेकिन अब उनकी रेंज बढ़ गई। तो वो रेंज बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट के और वेरिएशंस निकालने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए भी लाइसेंस लेना जरूरी था। तो किन 3 पर्पज से लेना जरूरी था? एग्जाम में आ सकता क्वेश्चन, फॉर व्हाट रीजन लाइसेंस वाज सपोज टू बी टेकन बाय एन इंडस्ट्री बाय गवर्नमेंट। इट वाज फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्री, एक्सपेंशन ऑफ existing industry, diversification of products means new product along with the old product. So this is all related to license. क्या हो गया, हम रिवाइज कर लेते हैं। इट इज अ रिटन परमिशन बाय द गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अंडर इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 फॉर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्री, फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो इन सब के जो मेन हाईलाइट है वो हमने यहाँ डाल दिए हैं। क्या है मेन हाईलाइट? नो न्यू इंडस्ट्री विदाउट लाइसेंस कैन एंटर इनटू दी मार्केट, यानी बिना गवर्नमेंट की परमिशन से, बिना लाइसेंस लिए कोई नई इंडस्ट्री इस सेक्टर में नहीं आ सकती। तो लाइसेंस लेना एक कंपलसरी टर्म एंड कंडीशन बन गया था फॉर इंडस्ट्री टू ग्रो एट दैट टाइम। सेकेंड, लाइसेंस वॉज इजी। लाइसेंस लेना किसके लिए इजी हो गया था? सेटिंग अप इन बैकवर्ड एरिया, मींस जो इंडस्ट्री रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में, रिमोट एरिया में अपना फर्म डालना चाहती हैं, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहती हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती हैं, उनके लिए लाइसेंस लेना इजी होता था। इसका एक सिंपल सा मोटिव था, जो रीजनल इनइक्वालिटी थी हमारी कंट्री में, उसको खत्म करना, सो दैट रूरल एरिया में भी लोगों को काम मिले, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। कैसे होगा? इनकम आएगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा और वो अर्बन एरिया के जैसे सरवाइव कर सकेंगे। तो ओवरऑल जो अर्बन और रूरल एरिया में जो रीजनल वेरिएशंस हैं उनको खत्म किया जा सकता था। फॉर दिस मोटिव गवर्नमेंट ने लाइसेंस उन लोगों के लिए इजी कर दिया जो रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते थे। इससे दोनों मोटिव पूरे हो गए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को मौका मिल गया अपना बिजनेस ग्रो करने का, और गवर्नमेंट को मौका मिल गया लोगों को और कंट्री को इक्वालिटी अचीव करने का। और इस प्रोसेस में जब गवर्नमेंट इनको बैकवर्ड एरिया में प्रमोट करना चाहती थी, इसमें उन्होंने और भी कई सारे इनको लालच दिए इन इंडस्ट्रीज को, जैसे कि टैक्स कंसेशन दे दिया, सब्सिडीज दे दी। यानी जो इंडस्ट्री रूरल एरिया में जाके काम करेगी, बैकवर्ड एरिया में काम करेगी, एक तो उनको लाइसेंस लेना इजी, साथ में टैक्स रिलीफ देना शुरू कर दिया, टैक्स कंसेशन मिल गया, सब्सिडीज मिल गई, प्रोडक्ट की रेंज जितनी ज्यादा वो करना चाहे वो अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते थे। मीन्स गवर्नमेंट ने इनको कहीं ना कहीं फ्री छोड़ दिया इन देयर ओन फील्ड, सो दैट दे कैन प्रमोट फास्टर एंड can promote the economy of rural country, rural areas, right? So this is the motive behind, purpose behind introducing license and to make it beneficial for the rural area. And the third was, but obviously we have discussed, for expansion of production, for promotion of more product and the growth of overall output of the country. क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज लाइसेंस के थ्रू ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी, एक्सपेंशन करेंगी, तो डेफिनेटली ओवरऑल आउटपुट विल इंक्रीज फॉर द कंट्री, which will be a good target achieved by the government as well. तो ये है हमारी पूरी लाइसेंस की स्टोरी which was introduced by the government in schedule C of IPR 1956. तो उस वीडियो को देखकर ही इसको आगे बढ़ना, तभी समझ में आएगा ये कनेक्टिविटी क्या है। Now we are moving to the last topic in this category. मैंने आपको बोला था हम इंडस्ट्री सेक्टर में 3 चीजें पढ़ रहे थे, जिसमें हमने IPR पढ़ा और ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर क्यों लीड कर रही थी वो पढ़ा, इंपॉर्टेंस क्या थी वो पढ़ी। अब लास्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रीज क्यों सेटअप हुई इस एरिया में, क्या गवर्नमेंट का मोटिव था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लाने से, क्या बेनिफिट हो सकते थे, वो सारी चीजें अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? फर्स्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1955 थ्रू कार्वे कमिटी। कार्वे कमिटी इज एक्चुअली अ विलेज एंड कॉटन इंडस्ट्रीज कमिटी जो बनाई गई थी स्पेशली टू डेवलप द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टू डेवलप द इंडस्ट्रियल यूनिट इन रूरल एरियाज। तो यानी छोटी छोटी जगहों पे, रिमोट एरियाज में जो हैंडीक्राफ्टमैनशिप है उसको प्रमोट करने के लिए, छोटे छोटे प्रोडक्शन करने के लिए, लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के रीजन से इस कमेटी का गठन हुआ, ये कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का नाम रखा गया फिर कार्वे कमेटी 1955। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। सो इट इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन। कमेटी रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट।
तो इस कमेटी का काम क्या था कि उनको ये जानना था कि रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, रूरल एरियाज में लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल लेवल की, विलेज लेवल की कॉटेज इंडस्ट्रीज होना जरूरी है, जो आज के टाइम में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट बन चुका है MSME के नाम से। इसमें ये सारी रेंज कवर हो जाती है, दैट हैज मॉडिफाइड। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंसेप्ट सबसे पहले हमारी कंट्री में 1955 में आया, कार्वे कमेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आया। किस रीजन से आया? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप की जाए, किस कारण से? रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो ये कार्वे कमेटी का मोटिव था। अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम यहाँ देख लेते हैं। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड with reference to the maximum investment allowed on the asset of the unit। यानी कि जो इंडस्ट्री सेटअप होने जा रही है, जिस टारगेट को लेके सेटअप होने जा रही है, जितने एसेट को लेके सेटअप होने जा रही है, उसके बेसिस पर एक इन्वेस्टमेंट डिसाइड होता है। अगर आप 100 आउटपुट प्रोड्यूस करने जा रहे हो तो आपका आउटपुट कितना हो सकता है उस 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने का, That is called the setup of investment for a small scale industry। तो ये डेफिनेशन है, इसको आराम से लिख लीजिए आप, बहुत जरूरी डेफिनेशन है। This can be asked in the examination as well। What is small scale industry? Small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the asset of the unit। अब वो इन्वेस्टमेंट कितना है ये हमें समझना है। The investment limit was 5 lakh in 1950। 1950 में जब प्लानिंग पीरियड शुरू हुआ तब ये इन्वेस्टमेंट लिमिट 5 लाख थी, बट आज के टाइम में ये इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ है। कितनी है? 1 करोड़। और अभी MS, क्योंकि ये पेंडेमिक हुआ कोविड-19 पीरियड में, जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस हुआ है उसमें और कुछ मॉडिफिकेशंस हुए रिलेटेड टू MSME, जो इसी कैटेगरी में एक मॉडिफाइड रूप है, मॉडिफाइड ट्रांजेक्शन। सो दिस इज व्हाट। अब हमें ये समझना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि मेन क्वेश्चन यही है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग SSI, small scale industry? What is the importance of small scale industry? What is the role played by small scale industries in rural development? So इतने तरह के क्वेश्चंस यहाँ बन जाते हैं। अभी अभी में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बना दिए, इसी के बेस्ड कई और क्वेश्चंस बनते हैं जो हमको समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है कि क्यों जरूरी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्यों हमने ग्रो करी इस फील्ड में, क्यों हम इसको रूरल एरिया में लेकर आए, ये सारे पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हियर इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। डेफिनेटली रूरल एरिया में लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, इसलिए एग्रीकल्चर पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो उस वर्कफोर्स प्रेशर को डाइवर्सिफाई करने के लिए, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में फॉरवर्ड करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस इंडस्ट्री की डिमांड थी। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया और लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपने एरिया में ही प्रोवाइड करा दिया, जिससे वो माइग्रेट ना हो अर्बन एरियाज की तरफ और अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन ना इंक्रीज हो, अर्बन एरिया में और इश्यूज ना क्रिएट हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के इस इंडस्ट्री को रूरल एरिया में डेवलप करना जरूरी हो गया था, सो दैट इट कैन प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ लेबर टू वर्क इन देयर ओन एरिया। So in all short, if you are understanding the concept, it is based on labor intensive। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? लेबर इंटेंसिव, क्योंकि नाम ही है स्मॉल स्केल, छोटे उत्पादन, छोटे प्रोडक्शन। तो छोटे प्रोडक्शन में टेक्निक की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ज्यादा जरूरत किसकी होती है? लेबर की। तो ये जो इंडस्ट्री है वो लेबर इंटेंसिव होती है, लोगों को काम देती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और रूरल एरियाज में प्रमोट करती है लिविंग स्टैंडर्ड को। इसलिए ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग इंडस्ट्री। ट्रू, क्योंकि अब ये इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि अगर ये कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं तो जो इंडस्ट्री मॉडर्न है, फास्ट ट्रैक पर है, जो टेक्निक बेस्ड है, वो मशीनरी का यूज करके फटाफट प्रोड्यूस कर देती हैं। और क्या होता है, वो चीप हो जाती है। लाइक ब्रिटिशर्स के टाइम पे हो रहा था। ब्रिटिशर्स गुड क्या थी? मशीन मेड थी, चीपर थी, और हमारे प्रोडक्ट हैंडमेड थे इसलिए एक्सपेंसिव थे। तो वही सिनेरियो तब भी था, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी था, प्लानिंग पीरियड में भी था कि मशीन मेड गुड्स चीपर होती थी और जो हैंडमेड गुड्स हैं वो महंगी होती है। अगर आप आज भी देखें तो अगर हम सदर्न एरिया में जाएं तो वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग है टेक्सटाइल की, जो हैंडमेड है वो महंगा होगा, जो मशीन मेड है वो सस्ता होता है। कई बार आपने देखा खादी प्रोडक्ट, खादी के कपड़े महंगे होते हैं। क्यों? हाथ से बनते हैं
और वैसे आप पॉलिस्टर और रेडीमेड कपड़े लो, सस्ते होते हैं, क्यों? मशीन से बनते हैं। तो इट्स जस्ट अ रीजन कि अगर हम इन इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं, इन इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं, तो इनको हमें बचाना होगा बिग इंडस्ट्री से। इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत जरूरी थी। अब बचाएं कैसे, उसके भी दो रास्ते गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे। पहला रास्ता बाय रिजर्विंग दी प्रोडक्ट। बाय रिजर्विंग दी प्रोडक्ट मीन्स गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि कुछ प्रोडक्ट लिमिटेड रहेंगे जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस करेंगी, यानी बिग इंडस्ट्रीज, बिग फर्म इस एरिया में नहीं आएंगे। यानी गवर्नमेंट ने बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर दिया इस एरिया को कि ये कुछ आइटम्स हैं जिनको कोई भी बड़ी इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं करेगी। ये आइटम सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ही प्रोड्यूस करने के राइट्स हैं। दैट इज व्हाट गवर्नमेंट हैज डन बाय रिजर्विंग द प्रोडक्ट, राइट? So the second way through which government tried to protect small scale industry was various concession. अब ये concession दिए किस तरह से गए? Here government has tried to give them a tax concession, subsidies and the benefits of product and the various product through which they can give the concession. Concession was also given in the term of excise duty. So excise duty was lower and lower loans, lower rate of loans मीन्स लोअर इंटरेस्ट लोन, राइट? तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोई लोन भी लेना चाहती है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उनके लिए लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो बहुत मिनिमम रखी जाती थी, जिससे ये प्रमोट हों, लोन लें, प्रोडक्शन करें और अपने एरिया को और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके उस पूरे एरिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधार सकें। तो रूरल एरिया को खास तौर से एडवांस करने के लिए, उनको एफिशिएंट बनाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को और जनरेट करने के टारगेट से गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया। So here we have understood about small scale industry, what was the meaning, how it was introduced by Karve committee, in which period, this is the definition, this is the investment limit of small scale industry, importance of small scale industry just to promote employment for the, especially for the rural area, so that workforce pressure can be reduced from agriculture, can be diverted to industrial sector and people can learn their earnings in livelihood. And the second is it is needed for the protection from big firms, and the protection was done in two way. By reserving the product means few products were reserved only to be produced by small scale industries. Second is by various concession, in which excise duty concession and the lower rate of interest for loan taken by small scale industry. In these way small scale industry was set up, grown in our country, and it was benefited the rural areas as well as the urban areas and altogether the country almost. So this is all about industrial sector growth during planning period 1950 and 1990. Now we discuss foreign trade, how it was channelized during this period. So that's all for today. We'll meet in the next video. Till then, bye bye.